जयधारी माँ, नमस्ते। बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। आज का लाइव इस प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं कि आने वाला समय हम सभी के लिए बहुत मंगलमय हो। मेरा नाम साइना बरूचा है। मैं इंडिया विजन फाउंडेशन की परमानेंट ट्रस्टी हूँ और नवज्योति इंडिया फाउंडेशन की एडवाइजर। हमारे लिए आज बहुत ही ऑस्पिशियस दिन है। उस शुभता को आपके साथ बांटने आए हैं। आज मेरी मम्मी डॉक्टर किरण बेदी का जन्मदिन है। वो ये दो संस्थाओं की भी जननी है। हम उन्हें आज एक वर्चुअल गिफ्ट देने आए हैं। उस वर्चुअल गिफ्ट का नाम है डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग। ये एक वेबसाइट है जो एक सिनर्जी है, एक कमिंग टुगेदर है ऑफ बोथ द एनजीओज एंड माय मदर्स कंप्लीट जर्नी, उनकी जीवन की यात्रा। जिस तरह मैं समझती हूँ, हम उन्हीं की मेहनत उनको दे रहे हैं। पता नहीं हम उन्हें ये गिफ्ट दे रहे हैं कि वो हमें दे रही हैं। As a daughter, I can tell you, my mother is true to who she is every moment of her life. Let me now introduce the founding members to you. Chandni Bedi, Director Rural Programs, Navjyoti India Foundation. Mr. Deepak Chandwani, Strategy Architect Cloud, CVS Health. Isha Arora, Executive Digital Media, Rajnivas Puducherry. Monica Dhawan, Director India Vision Foundation. Neetu Sharma Joshi, Director Urban Programs, Navjyoti. Mr. Suresh Vyas, Managing Partner, SNR Company, Chartered Accountants. Ujala Bedi Chaudhary, Executive Director, Navjyoti India Foundation. Shantanu Chaudhary, Consultant, Navjyoti India Foundation and India Vision Foundation. Let's invite Mummy now to open the birthday present. Mummy, please आइए. Jayadhari Ma, Mummy, wish you a very, very blessed happy birthday. I don't have words enough to thank you. All yours, all yours. With your blessings, I invite Shantanu to take us through the website, demonstrative learning. Uske baad, we will open for a question answer session. Over to you, Shantanu. Good afternoon, ma'am. Thank you, Simon. Thank you, core team members, for giving me this opportunity of presenting demonstrative learning to Dr. Bedi. Before I take you all through demonstrative learning, especially thanks to Deepak Chandwani for making this happen, Noman Khalid for designing this website, Isha Arora for arranging the creatives, Aditya Ghosh and Avi Dhawan for helping me do my extensive testing. Ma'am, demonstrative learning is a conference of your administrative best practices, along with rediscovering the art of storytelling and book reading, in addition to providing grassroots level experience of social change for the last 3.5 decades of its founding NGOs, Navjyoti India Foundation and India Vision Foundation. Now, with your permission, ma'am, I would like to take you through the website slides with some of the key features. The first slide you see, ma'am, is a registration page along with the social media handles of demonstrative learning. The next insert you see, would contain thought of the day from you and our executive member, Saina Barucha.
Hive Plus is one of our USPs. This is an archive of book reading, videos of your leadership interventions, and window to the best practices of its founding NGOs. Books by Dr. Bedi is a repository of all the books we could gather which was written by you. Last but not the least is our signature question and answer section. We named it as Ask Us. Ask Us responses to the queries raised here would be drawn from the combined intellect of all the founding members of the group. We thank you, ma'am, once again for inspiring us to make this demonstrative learning take shape. God bless you, and once again, a very happy birthday. Thank you. Jai Hind. मम्मी Q&A शुरू करने से पहले I would like to thank all our well wishers. इतनी सारी ढेर सारी blessed wishes pour in हो रही हैं. I'm extremely grateful to all of you for giving so much of love and care to my mother. Thank you. We have Rajendra Gupta. He says auspicious day indeed. We have Niyati. She says happy birthday to Dr. Kiran Bedi. We have Sonia Shukla saying happy birthday, ma'am. ये तो भंडार है विशेष का. Thank you so much. Thank you. It's impossible to take everybody's name, but thank you to each one of you. मम्मी बताइए डीएल के पीछे मकसद क्या है, विजन क्या है मम्मी इसकी, और इसमें सब एज ग्रुप्स के लिए कुछ ना कुछ है. Take us through this, mummy. I'm so proud of all of you, my entire family on the screen. It's a family of professionals. It's coming together by destiny. I want to thank each one of you that you have given me a virtual present. Each one of you. Demonstrative learning, जैसे शांतनु ने बताया, it is an assembly of experience. क्योंकि जिंदगी में गलती करके क्यों सीखना है? गलतियां किसी की करो, कोई हो करे, आप उससे सीखो. So you are here learning what worked, what succeeded, what made you successful. So अब हाइव्स में आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, अब मेरी दोनों एनजीओ जो कि 30 साल पुरानी हैं, इनकी गुड प्रैक्टिसेस आप सीख सकते हैं. अगर आप एनजीओ चलाने वाले हैं तो एनजीओ सीख सकते हैं. अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, यूपीएससी या सिविल ऑफिसर बनना चाहते हैं, गुड प्रैक्टिसेस मैनेजमेंट, अगर आप मैनेजमेंट स्टूडेंट है, तो इट इज अ कमिंग टुगेदर ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसको कहते हैं फास्ट फॉरवर्ड. तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है. हमारे जैसे 30 साल वेट नहीं करो, 40 साल वेट नहीं करो, 20 साल वेट नहीं करो. आप सीख सकते हो स्ट्रेट अवे. डेमोन्स्ट्रेशन, इट्स डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग, इसलिए सीख सकते हो बाय डेमोन्स्ट्रेशन. हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता रहे हैं कि ये चीजें कामयाब हैं. दैट इज व्हाई द वर्ड इज डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग. ये ये प्रैक्टिकल लर्निंग है और दिखा के साबित की हुई है कि ये वर्क करती है. सो हमने अपना सारा जिंदगी का एक्सपीरियंस इसमें डाल दिया. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस दोनों का, जिनका मैंने जिक्र किया, इंडिया विजन, और ये आप जाएंगे समझेंगे तो दोनों के पास 30 years से भी ज्यादा रिच एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजमेंट इन स्लम्स, इन विलेजेस, इन प्रिजन्स, इन पुलिसिंग, इन क्राइम प्रिवेंशन. कौन सी चीज का नाम लो ये आपको मिलेगा. एनवायरमेंट, रूरल डेवलपमेंट, तो यहाँ सब मिलेगा आपको. सो आप, और मेरी जिंदगी का एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा, लॉ एनफोर्समेंट मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन. सो हम लोग ये डालते जाएंगे. ये हमारा वर्जन 1 है. माफ करना, ये मत सोच कहना सारा कुछ ये नहीं आया, ये नहीं आया. अब ये देखना ये आया क्या, ये ना देखना क्या नहीं डाला गया, ये देखना डाला क्या गया. क्योंकि जिंदगी लंबी है, ये साइट की लंबी है. हम डालते जाएंगे वर्जन्स में बारी बारी, और आपके एक्सपीरियंसेस. डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग एक भंडारा है, एक कमिंग टुगेदर है, एक सिनर्जी है, जहां हमने अपनी जिंदगी, अपने कोर, जब आप हाइव में जाएंगे तो आप देख लेंगे हमारे कोर, हमारी कैपेबिलिटीज क्या है, और हमने अपनी कोर वहां पर आपके लिए खोल दी कि आप देखो, गलती करे बिना सीखो और आगे चलो. हम चाहते हैं आप कामयाब बनो, आगे चलो, हम आपको फॉलो करें.
आज आप हमको देख रहे हो, हम आपको देखें कि कामयाबी कैसी होती है, गुड प्रैक्टिसेस क्या होते हैं। सो बेटे, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग। वांट टू थैंक यू बेटा, you are as my daughter, you've done me proud. Thank you, Mummy. Thank you. It's all your blessings. Thank you. Ma's Kripa, Mummy, that we are together on this day today. Thank you. What keeps you motivated? What keeps you inspired? What keeps you going? सबसे बड़ी याद रखना, तंदुरुस्ती भगवान की देन भी होती है और खुद की मेहनत भी होती है। तंदुरुस्ती ईश्वर की कृपा भी होती है, तंदुरुस्ती अपनी कर्म और मेहनत की होती है। जिसके पास ऊर्जा है, जिसके पास तंदुरुस्ती है और उसके पास समय है, अगर आपके पास ऊर्जा और समय है, तो फिर आप कामयाब होना ही है। आप अच्छे कर्म के लिए हैं, ऊर्जा वेस्ट के लिए नहीं है, समय वेस्ट के लिए। ईश्वर ने मुझे ऊर्जा रोज दी। अगर रोज मुझे एक दिन फिर से जगाता है, तो मुझे कुदरत फिर से एक जीवन दान देती है एक दिन और का, उसमें वो ऊर्जा भी डाले, उसमें वो समय भी दे, तो मैं भी ये उसका शुक्र करके अपना तन मन धन देने का के लिए है। सो ये विश्वास जिसके दिमाग में आ जाए कि मुझे भगवान, ये कुदरत ने ऊर्जा लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए दी है, और ये कुदरत ने मुझे समय दिया है एक जीवन जीने के लिए, एक दिन एट अ टाइम। अब मैं कल की ऊर्जा नहीं बोरो नहीं कर सकती, मैं कल की हेल्थ बोरो नहीं कर सकती। आज मैं अपना ध्यान रखूं और जो मेरे सामने मेरा कर्तव्य है, अगर ये दिमाग में हो कि मैं कर्तव्य की ओर फोकस रखूं, आज मेरा कर्तव्य क्या है, आज मेरे लिए सही क्या है, बिना अपने आप को तनाव दिए, बिना स्ट्रेस किए, ये मेरा मेंटल एटीट्यूड है। ये मुझे याद कराता है कि आज आपको भगवान ने ऊर्जा क्यों दी, आज भगवान ने एक दिन जीवन आपको क्यों दिया, तो वो उसके ऊपर सामने मेरा कर्तव्य है, जो भी ड्यूटी है। चाहे मैं आज हाउस होल्डर होती, अगर मैं कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं होती और मैं सिंपल हाउस होल्डर होती, जैसे मेरी माँ थी, तो मेरी माँ क्या करती थी, हम चारों बेटियों को, और तुम्हें पता है बेटे, योर ग्रैंड मदर, हाउ शी लुक्ड आफ्टर यू, उसकी सामने थी, मुझे भगवान ने तंदुरुस्ती दिए अपने बच्चों के लिए जीवन जीने के लिए, और मेरे बच्चे पढ़े लिखे लायक बने। सो आप चाहे हाउस होल्डर हो, चाहे आप मेरे जैसे कामकाजी हो, जो आपके सामने है, अगर आप उसको अपना सब कुछ देते हो, आपको वापस ऊर्जा ही मिलती है। ये मेरा मेरा एक कारण है और ये मेरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। जी, जी। आपने आपने वर्ड समय 2-4 बार ही बोला है, एंड आई नो हाउ इम्पोर्टेंट टाइम इज टू यू। आपके लिए टाइम वर्ड क्या मायना रखता है? बेटा, मैं पुडुचेरी में काम करती हूँ और पुडुचेरी की बीच यहाँ सबसे ज्यादा सुंदर है। अगर आपको मैं ये उदाहरण देके बताऊं कि मेरे लिए समय क्या है, मैं जब भी तट पे जाती हूँ, मुझे वो समय एक ओशन के समान है, एक समुंदर है। समुंदर जो स्थल स्टेट खड़ा भी है, तूफान भी करता है, लेकिन खुला आसमान है, इसकी कोई सीमा नहीं है, मुझे उसकी कोई हद नहीं नजर आती। समय जो है वो स्पेस है, समय जो है वो आसमान है। समय लिमिटेड नहीं है, समय घड़ी नहीं है, समय घड़ी नहीं है। हम लोग समझते हैं घड़ी है, मेरा टाइम क्या हो गया, ये टाइम मुझे इस वक्त सूर्य की रोशनी के अनुसार पता चलता है कि आज सुबह है या शाम है, और उसमें मुझे क्या करना है। लेकिन टाइम इज टाइमलेस, टाइम इज नॉट लिस्टेड टू मींस अ रिस्ट वॉच, टाइम मींस स्पेसलेस। एंड ओशन ऐसी, जैसे मैंने समुद्र का उदाहरण दिया, समुद्र जैसे मेरे से पहले भी था, मेरे से बाद में आएगा, मुझे उसका एक बूंद जैसे उसका हिस्सा बने रहना है, और उसकी तूफान को भी झेलना है, उसकी स्तर को भी झेलना है, उसकी हवा भी लेनी है और उसका मजा भी लेना है, उसकी ठंडक भी लेनी है। ये है जीवन, समय। मेरे लिए समय घड़ी नहीं है, मेरे लिए समय स्पेसलेस है, टाइमलेस है, और उसमें मैं एक छोटी सी एक जान हूं, एक छोटा सा जीवन हूं, मेरा एक पर्पस है, जिसके लिए मुझे जन्म दोबारा लिया है। सो मेरे लिए समय, टाइम इज नॉट लिमिटेड टू व्हाट वी थिंक। इट इज seamless, it's spaceless, it's timeless, and on which you and I are just one speck of it. We are part of it, yet watching it and yet witnessing it. इस पे एक आपको बात पूछूंगी जो मैं शुरू से ही एडमायर करती थी और अब उसको समझ रही हूँ। समय कई बारी हमसे कुछ ऐसे फैसले कराता है
जहां हमें अकेले चलना पड़ता है। There are consequences which one has to go through for staying true to one's own self. आपने वो फैसले बहुत बारी लिए हैं, वो ताकत कहाँ से आती है? रोज समझना कि आज अब मेरे पास क्या है। जब आप भविष्य में नहीं जीते, वर्तमान में रहते हो और भूतकाल में नहीं जाते। भूतकाल एक मेमोरी है और भविष्य आने का कल है जब आएगा। लेकिन अगर मैं भूतकाल को एक मेमोरी समझूं जो कि एक्सपीरियंस है, अगर मैं उसको सदुपयोग करूं, मेरा आज बच जाएगा। लेकिन अगर मैं उसका दुरुपयोग करूं, तो आज मेरा दुखी भी हो जाए, या मैं नाचती रहूंगी और पता नहीं फिर चिंता करूंगी कल भी नाचूंगी कि नहीं, कल भी खुश होंगी कि नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि भूतकाल को मेमोरी समझो और उसका शुक्र करो, उससे सबक सीखो और आज का जीवन ऐसा काम करो जो कि कल के लिए आप खुश ऐसा महसूस करो, आप पर गर्व कि जो मैंने कल किया था मुझे उस पर गर्व है, या जो मैंने ठीक नहीं किया था आज मैंने उसको सुधारा। जी, जी। This is all about mental strength. Physical strength तो आप में कूट-कूट के भरी हुई है। And I witnessed that as a when I was very small. आप तलवार लेके लड़े थे और कुछ पता नहीं था कि उसका अंजाम क्या होगा। वो ताकत कहाँ से आई मम्मी? वो मेरी वर्दी से आई बेटे। मैंने जी, यूनिफॉर्म पहना था बेटा। जी, यूनिफॉर्म जब आप पहनते हो, खाकी पहनो, व्हाइट कोट पहनो, ऑलिव ग्रीन पहनो, ब्लू जी, पहनो, व्हाइट पहनो, स्कूल का यूनिफॉर्म पहनो, एनसीसी का यूनिफॉर्म पहनो, एनएसएस का पहनो, रेड क्रॉस का पहनो, गर्ल गाइड बनो, स्काउट्स बनो। जब आप वर्दी पहनते हो, उस वर्दी के साथ एक कर्तव्य जुड़ता है, तब वो त्याग जी, भी मांगता है, लेकिन जी, वो तैयारी भी मांगता है। वो त्याग भी मांगता है, तैयारी भी मांगता है। त्याग समय का मांगता है, आपकी मेहनत का मांगता है। मैंने उस वक़्त बेटे जब नंगी तलवारों के साथ लड़ाई की थी, तो एक एजिटेशन थी। अगर वो तलवारों को के साथ मैं ना लड़ती, तो ये नंगी तलवारें एक बहुत बड़े समूह में चली जाती, जो बहुत काट-मटाई होती। तो इसलिए मैं उस काट-मटाई से बचाने के लिए उस तलवारों को मैंने कंटेन करने की कोशिश की। ये सही बात है। उस वक़्त मैं अकेली रह गई थी, मेरे पास सिर्फ़ एक डंडा था। ये सही बात है। जब मैंने पीछे पलट के देखा, मेरे पीछे कोई नहीं था। लेकिन मैंने वर्दी पहनी थी। मेरे अंदर वो पुलिस की ट्रेनिंग कूट-कूट में भरी हुई थी और मुझे सिखाया गया था कि नेशन कम्स फर्स्ट, कर्तव्य कम्स फर्स्ट, ड्यूटी कम्स फर्स्ट। तो जब मेरे सामने ये था, तो मैंने उस हिम्मत से। और बेटा एक और बात बताऊँ, एक लड़की होते हुए, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स की गर्ल थी, मैं टेनिस प्लेयर थी रेगुलरली और मैं रोज़ कॉम्पिटिटिव टेनिस में जाती रहती थी। तो तुमने मुझे देखा ही है, तुमने टेनिस की भी खेली। तो जो लड़कियाँ, जो लड़के ऑल राउंडर बनते हैं छोटी उम्र में, स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, आउटडोर एक्टिविटी में भी जाते हैं, आर्ट कल्चर इंडोर अलग बात है। आउटडोर में एक नई तपस्या माँगता है, सूर्य की किरणें माँगता है, नई। सो आई वाज़ अ स्पोर्ट्स गर्ल। तो टेनिस इंडियन पुलिस सर्विस में आने से पहले मैं ऑलरेडी तुझे पता है बेटा कि आई वाज़ ऑलरेडी अ टेनिस चैंपियन। क्या टाइटल्स जीते वो मेरा विकिपीडिया बताता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ऑलरेडी टेनिस प्लेयर थी। मेरे पास स्टैमिना था, मेरे पास डिटर्मिनेशन थी, मेरे पास लड़ने की जिगरा था। मैं हारी भी थी, जीती भी थी। तो मैं हार-जीत के, अगर मैं पहले डरती कि मैं हार नहीं जाऊँ, तो मैं टेनिस क्यों खेलती? तो मैं टेनिस रोज़ खेलती थी, मैचेस खेलती थी और ना डरती थी कि जीतूँगी कि हारूँगी। मैं तैयार होके जाती थी। जब मेरी तैयारी अच्छी होती थी, मैं जीतती थी। जब मेरी तैयारी नहीं ठीक होती थी, मैं हारती थी। तो जब मेरा टेनिस ये तलवारों के साथ हुआ, मेरे लिए एक मैच था। मेरे लिए एक मैच का कर्तव्य था। मुझे ये कर्तव्य निभाना है, अपनी वर्दी की लाज रखने के लिए और समाज को बचाने के लिए, क्योंकि वर्दी भगवान आपको तब देता है, अपने आप को बचाने के लिए नहीं देता, वो समाज को बचाने के लिए देता है। आपकी प्रोटेक्शन तो करता ही है। मेरी तो प्रोटेक्शन हो ही रही थी, क्योंकि वो क्या हुआ था, वो जब तलवारें कर रहे थे, तो मुझे वो पोक नहीं कर रहे थे, वो करने की कोशिश करते थे, लेकिन मेरी वर्दी से डर भी रहे थे। मैं उनको अपनी वर्दी से हावी करने की कोशिश करी थी और वो मेरी वर्दी से डर रहे थे। तो ये जो यूनिफ़ॉर्म भगवान देता है, कर्तव्य देता है, वो आपका एक एक एंकर भी बनता है, आपकी शील्ड भी बनता है।
आपका कवच भी बनता है। तो मेरे लिए वो यूनिफ़ॉर्म मेरा कवच भी था, लेकिन मैं भी समाज के लिए भी कवच थी। तो इसलिए दिमाग में जब आपको ये ट्रेनिंग हो जाए, कि आप यहाँ किस लिए हैं, तो आप उस पर फ़ोकस करते हैं। उस पर फिर आपका रिज़ल्ट कुदरत के हाथ में होता है, लेकिन आपको समझदारी से करना है। मैं ये थोड़ी कि तलवार की घुस गई थी। नहीं, मैंने जीतना था, मैंने उनको हराना था, इसलिए मैं उनको डराती रही और धीरे-धीरे जीत गए। लेकिन भगवान की कुदरत है, इसमें भी कुदरत का हाथ होता है। जब आप जीत-हार कुदरत के हाथ में होती है। भगवान कृष्ण ने यही कहा था ना उसको अर्जुन को, "अरे तू लड़, जीत-हार का तू तू अपना कर्तव्य कर, रिज़ल्ट जी मेरे पे छोड़ दे।" मेरे पास वही था क्योंकि छोटी उम्र में मेरी माँ, मेरी नानी, दादी ने भी मुझे ये पाठ पढ़ाए थे। तो बच्चों छोटी उम्र की शिक्षा, स्कूलों की शिक्षा, स्पोर्ट्स की स्टैमिना, ये टेस्ट होता है। सिचुएशन जब कई बारी ज़िंदगी देती है तो आपको पुराना टेस्ट करती है और आप उस वक़्त बिना रिहर्सल के आप सफल हो जाते हैं। जी। धारी माँ आपको बहुत शक्ति दे, हर रूप में शक्ति दे। आपका परिवार आपके साथ है। I know my Abu is also smiling up there and he's very happy to see you. बीजी दादा बहुत खुश हैं आपको देख के। बड़े मामा पापा बहुत खुश हैं आपको देख के। हम सब आपके साथ हैं। आप अपना कर्तव्य पालन करते जाओ। We are with you. Whatever it takes. आप करो मम्मी। Any message for the budding young officers? क्योंकि आपने कभी कोई पोस्टिंग सीख नहीं करी। आपके लिए कोई पोस्टिंग छोटी बड़ी नहीं है। यू एम्ब्रेस द डे एज इट्स कम। कोई मैसेज देंगे मम्मी बडिंग ऑफिसर्स को? मैंने हमेशा उनको ये कहा है कि जो चीज़ आपको इंटरव्यू में पास कराती है, जब आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप पब्लिक सर्विस क्यों जॉइन कर रहे हो? तो आप कहते हो मैं देश की सेवा के लिए, मैं देश की भक्ति के लिए, मेरे देश में मैं ईमानदारी के लिए, मैं पब्लिक का सुधार के लिए। तो जब आपको जॉब मिल जाता है, तब नहीं भूलना है। ये बात रोज़ याद करनी है। जब आप हर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाते हो, चर्च में जाते हो, हर जगह जाते हो कि मुझे भगवान जॉब दिला दे, यूपीएससी पास करा दे या सरकारी काम दे दे, तो मैं तेरी मैं उम्र भर प्रार्थना करूँगा। तो जब आप जॉइन कर लेते हो, तब आपको क्यों कहना पड़ता है ईमानदार बनो? तब तो तुमने प्रार्थना की थी ना? तुमने यही तो कहा था। तो जो इंटरव्यू में जवाब दिया था, जिसकी वजह से आप पास हुए हो, अब रोज़ पास हो ना। वो अपनी आत्मा की आवाज़ रोज़ पूर्ण करो ना। अगर आपके पास अट्रैक्शन आ रही है, डिस्ट्रैक्शन आ रही है, बोलो नहीं, मुझे मेरे काम इसकी वजह से नहीं मिला था। मेरा काम मुझे इस वजह से मिला था क्योंकि मैंने ये प्रण किया था और ये कहा था कि मैं अपनी देश की सेवा के लिए निकलूँ। इसलिए मेरा मैसेज ये टू ऑल द सिविल एस्पिरेंट्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स इज़ वो ना भूलना, वो उत्तर ना भूलना जिसकी वजह से आपको काम मिला। झूठ मत बोलना, रोज़ सच पे चलना और उसके लिए तैयार रहना। ट्रांसफर पोस्टिंग ज़िंदगी का हिस्सा होता है, कहीं भी जाना। हिंदुस्तान बहुत सुंदर जगह है। हिंदुस्तान बहुत जगह कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, अंडमान से लेके कच्छ तक बहुत सुंदर है। सिर्फ अपना सामान हल्का रखना, ताकि जब फर्नीचर उठाना पड़े तो बड़ा आसानी से उठ जाए और चलो भाई। सो आई थिंक दैट्स द पॉइंट। इसलिए मैंने अपना जीवन को हल्का रखा, कहीं भी जाने के लिए तैयार थी। लेकिन मेरा फैमिली का सहयोग सबसे इम्पोर्टेंट था। मेरे माँ-बाप का सहयोग, मेरे ससुराल का सहयोग और मेरा सबसे ज़्यादा तेरा सहयोग। You as a child, you were always ready to move with me. So beta, this is the family support. So family support, family friend support, relevant support, your well-wisher support, ये दुआएं और अपने बड़ों की, forefathers की support. लेकिन अपनी तैयारी, अपना कर्म के लिए। So I think मेरा मैसेज ये यंगस्टर्स है, वो उत्तर कभी ना भूलना जो आंसर आपने क्वेश्चन आंसर में लिखा था। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू में लिखते, अरे मैं ले रहा हूँ अपना घर बनाने के लिए ना, मैं सरकारी काम ले रहा हूँ ना अपनी शादी बहन की शादी कराने के लिए, ये मैं ले रहा हूँ ना सरकारी काम ताकि मैं जमीन खरीदूं, तो फिर आपको जॉब ना मिलता, आपको जॉब नहीं मिलता। जो व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस में ये कह के आया है कि मैंने अपनी देश की सेवा करनी है, देश का उद्धार करना है, समाज को हाँ बढ़ाना है, अपने परिवार की परवरिश भी करनी है, लेकिन ईमानदारी से, वो ये मिलियंस ऑफ लोग जो आज हैं और आने वाले हैं, हमारा देश
100% प्रगति की तरफ जाएगा। सवाल ही नहीं उठता कि सुनामी हो या कोविड हो, वो उसके लिए हमेशा तैयार होगा, क्योंकि हर पब्लिक सर्वेंट ट्रेंड होगा, ओरिएंटेड होगा, मेहनत के लिए 100, जैसे हमारी फौजें, हमारी आर्म्ड फोर्सेस 100% तैयार है, जिसकी वजह आज हम सुरक्षित हैं। आज हमारी पुलिस भी कोविड में किस तरीके से लड़ रही है देखो, आज हमारे डॉक्टर्स भी कैसे लड़ रहे हैं ना। हर व्यक्ति जितनी जिस भावना से था, आज वो भावना दे रहा है। अगर हम वो अच्छी भावना हमेशा रखें, जैसे हमारे आर्म्ड फोर्सेस रखते हैं, ये देश क्या कोविड क्या कुछ चीज के लिए भी हमेशा तैयार रहे। आपकी आपकी ब्लेसिंग्स बहुत मायना रखती हैं। वी अश्योर यू, आई अश्योर यू, आपके पीछे पीछे से चलूंगी, and we'll take the legacy forward, all of us together. We'll never let you down. We open the question answer session to our founding members, and of course it's open to the audience. Anybody would like to ask me a question? Yes, Monica. Beta, Monica is asking a question. Yes, Monica, go ahead. Good afternoon, ma'am. So, ma'am, how this demonstrative learning will be useful for the social network, social development sector practitioners? Can you help us out with that? सारी एडमिनिस्ट्रेशन सोशल डेवलपमेंट ही तो है। प्रशासन किस लिए है? समाज की बुनियाद के लिए, समाज के सुधार के लिए। तो सारी गुड प्रैक्टिसेस जो एडमिनिस्ट्रेशन जब अच्छा काम करता है तो सोशल डेवलपमेंट मिले जाता है। लेकिन साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन के बदले हमने अपनी सारी दोनों एनजीओज, इंडिया विजन फाउंडेशन जिसकी तुम डायरेक्टर हो, नवज्योति इंडिया फाउंडेशन जिसकी उजाला डायरेक्टर है, और नीतू है, चांदनी है और साइना भी है, ये सारे मिलके अगर आप ये वाले प्रैक्टिसेस जो आपने इतनी मेहनत करके सीखी, एक एक दिन मेहनत करके, और उसके पीछे हजारों डोनर्स हैं, हजारों वेल विशर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, इतना सारा बच्चे हैं, इतना सारा पंचायतें हैं, इतना सारा एक्सपीरियंस लेके जब आप उस डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग में डालोगे तो वो क्लिक करेंगे, वो सीख सकते हैं। और आसपास भी तो है ना, फिर लोग आपसे पूछ सकते हैं। मान लीजिए नहीं है हमारे पास वो लिखा हुआ, मैंने आपको कहा ये वर्जन 1 है, लेकिन आपके पास कुछ और भी क्वेश्चन आसपास आ सकते हैं, आसपास तो हम जवाब देने के तैयार हैं, हम आपको हेल्प करने के लिए तैयार हैं। सो हम सारे जवाब खुद नहीं देंगे, ये पार्टनरशिप भी करेंगे। अब साइना ने मुझसे हो सकता है पूछे कि मामा आगे क्या, आगे पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस, एनजीओज भी जुड़ सकती हैं आपके साथ, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स, फैकल्टी, रिटायर्ड, जो भी एक्सपर्टीज है वो, क्योंकि ये नॉन प्रॉफिट है, इस पे कोई कॉस्ट नहीं है, हमने कुछ चार्ज नहीं करना है, ये हमारी एक्सपीरियंस की भेंट है, यही तो वर्चुअल गिविंग है। सो इट्स अ वर्चुअल गिविंग जो कि जोड़ेगा, देगा, बांटेगा और आगे आपको कंट्रीब्यूट करेगा। आपका सोशल डेवलपमेंट ही तो है, आपका सारा प्रशासन किस लिए? समाज की बेहतरी के लिए। So Samaj Betri is not separate from anywhere. Samaj Betri social development is a product of all government policies. आज आपने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत कौन है? सारा समाज, 1.3 बिलियन, और हर टाइम हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1.3 बिलियन का मेरा भारत वर्ष। सो हम जो भी करेंगे ये सारा सामाजिक डेवलपमेंट में करेंगे, चाहे वो इश्यूज ऑफ लॉ एनफोर्समेंट है, चाहे वो लीडरशिप है, चाहे वो एनजीओ वर्क है, चाहे पंचायती राज है, चाहे स्लम्स में बच्चों को कैसे पढ़ाया जा सकता है, बच्चों को गुरुकुल कैसे बनाया जा सकता है, बच्चे भी एक दूसरे को कैसे सिखा सकते हैं। सो ऑल दीज, मैंने कम बोला, माफ करना, सब नहीं बताया, लेकिन जब आप देखोगे साइट में तो और कुछ बहुत मिलेगा, लेकिन हमें तो शुरुआत की है, ये तो आपका पहला चैप्टर है, अभी हमको और दूर जाना है। क्षमा करना अगर ये अधूरी है, लेकिन एक शुरुआत, क्योंकि जन्मदिन है, आप सब मिलके मुझे आपने दे दिया, अब धीरे धीरे सभी सपोर्टर्स के साथ मिलके और इसको आगे तंदुरुस्त और कॉम्प्रिहेंसिव बनाते रहना। आई एम श्योर शांतनु विल टेक केयर ऑफ दैट, क्योंकि शांतनु इज द लीड कोऑर्डिनेटर. Deepak Chandwani will provide us technology. Suresh Vyas will give us the financial support and guidance. तो ये तीनों और हमारे pillars हैं. आप दीपक को भी देख रहे हैं, सुरेश को भी देख रहे हैं,
और आप शांतनु को भी देख रहे हैं, ये तीनों टेक्निकल हैंड्स इसको और आगे ले जाएंगे और आपसे कंट्रीब्यूशन मिलती रहेगी और हम उम्र में बढ़ते रहेंगे। जैसे नवज्योति राय बढ़ी, अब डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग भी बढ़ेगी। 32 इयर्स तो नवज्योति हो गई, 25 इयर्स इंडिया विजन हो गई, और आज पहला घंटा बॉर्न है हमारी डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग। force now. जी बेटा, it's a living force now. इसमें प्राण है। It's a demonstrative learning, and my birthday now will be celebrated together. Always. Yeah. Always. Okay, Monica, I've answered your question. Yes. Thank you, ma'am. Thank you. A lot of blessed wishes here. SP Tiwari says very, very happy birthday, ma'am. Rishu Singh says happy birthday, ma'am. Madhu Sangal says happy birthday, Kiranji. Varada says happy birthday, madam. Thank you so much. Thank you, all of you. We are humbled. Thank you. Thank you. Any other question from our founders? Any other questions? Who? Chandni. Yes, beta. Chandni. Yes. Very happy birthday, ma'am, first of all. और हमारी बहुत सी ग्रामीण महिलाएं भी आज आपको सुन रही हैं, तो वो घूंघट से आत्मनिर्भरता का और ये टेक्नोलॉजी का सफर यहाँ तक पार करके आई हैं। आज उन्होंने कंप्यूटर कोर्स भी सीखा है और आत्मनिर्भरता की आपने बात भी करी अभी। तो मैम, उनके बिहाफ पे मैं जानना चाहती हूँ, उनके लिए एक मैसेज कि जब वो इस सफर पर आगे बढ़ती हैं तो उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कभी परिवार से तो कभी समाज से। तो उनके लिए आपका क्या संदेश, आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या स्किल्स वो हम महिलाएं हासिल करें कि सबको साथ लेकर चल सके? आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेरी मच रेलेवेंट टू द women in urban areas as well, and not just in India but globally as well. Chandni, you'll have to work with their families as well. As an NGO, you will have to work with these women's families as well. That's why family counseling centers are very, very important. क्योंकि उसको लड़ाई के लिए क्यों छोड़ते हो? वो बेचारी काम भी सीख रही है, कमा भी रही है और घर का भी विरोध समझ रही है। बेटा, ये जस्टिस नहीं है। तो therefore NGOs must go behind the woman और उसकी फैमिली को भी कोऑप्ट करो अपने काम में। उस फैमिली को भी डिजिटाइज करो, उस फैमिली को भी विन विन सिखाओ कि माँ या आपकी बहू जब कामयाब मेहनत पढ़ती लिखती है, डिजिटल बनती है, स्किल नया सीखती है, सारे परिवार को शिक्षा मिलती है, सारी परिवार को परवरिश मिलती है। इसलिए हर एनजीओ, हर औरत जो भी कहे कि मुझे घर में आज प्रॉब्लम आ रही है, उसको अकेला मत छोड़ो। विजिट हर होम, get her home, co-opt her home, so that the family also gets, her children gets co-opted, like my daughter Saina, because she was behind me, that I could work 24/7 in the Indian Police Service because of her. So therefore I would suggest family support बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी सजेशन ये है, हर एनजीओ जो कि महिलाओं के साथ काम करती है, विमेन को co-opt करे, पहले विमेन को बोलो और फिर ग्रुप काउंसलिंग करो, ग्रुप डिस्कशंस करो, ग्रुप रोल प्लेइंग करो, होम विजिट करो, काउंसलिंग करो, फैमिली को बुलाओ, फैमिली को समझाओ, उनके बच्चों को लाओ और उसको भी कैसे समझाओ कि अपनी फैमिली के साथ मैनेज करें। ये नहीं कमा के जॉइंट अकाउंट कर दो, ये नहीं, गलती वो करते हैं, कमाया साथ जॉइंट अकाउंट, अब फिर वो मांगती रहती। उसको सिखाओ, देना है फैमिली को जरूर दो, लेकिन अपना इंडिविजुअल आइडेंटिटी मत खोना। सो इसलिए मेरे ख्याल उसकी भी काउंसलिंग, क्योंकि उसकी भी मानसिकता बदलनी जरूरी है या उसकी मानसिकता को स्ट्रॉन्ग बनाना जरूरी है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको हर फैमिली को उसको बोलो, ग्रुप डिस्कशंस करो, इंडिविजुअल काउंसलिंग करो, होम विजिट करो, फैमिली को कोऑप्ट करो और इस स्कूलों में भी जाओ। और तुम जाती हो चांदनी, तुम जाती हो, नवज्योति स्कूलों में जाती है, प्रिंसिपल्स को कोऑप्ट करो, प्रिंसिपल्स उनको ऐसे समझाएं। सो इट्स अ टोटल, जैसे मोनिका ने बोला, इट्स लाइक अ टोटल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हम एक नई जनरेशन को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं जिसकी सोच एक ट्रेडिशनल थी, पूरी ट्रेडिशनल थी कि औरत तो सिर्फ यहां तक है, औरत का घर भी है, बाहर भी है। गौर, आज औरत मोबाइल भी बन गई है, आज उसके पास मनी भी है, मोबिलिटी भी है और मेंटल पावर भी है। आज उसके पास सब कुछ है, मेंटल पावर भी दे रहे हो आप उसको, मनी पावर भी दे रहे हो उसको, मोबिलिटी भी दे रहे हो उसको, अपने घर से नवज्योति में ला रहे हो, मोबिलिटी तो है,
उसको काम उन्नति के प्रोजेक्ट से सिखा रहे हो, मनी तो है, और उसको सिखा रहे हो काउंसलिंग करके, मेंटल मसल तो है, मेंटल पावर तो है, तो आप 3M दे रहे हो हर औरत को। M, मनी पावर, मोबिलिटी पावर एंड मसल पावर, विच इज द माइंड मसल पावर। सो उसके पीछे उसको अगर प्रॉब्लम आती है तो उसकी फैमिली को आपको बुला के कोऑप्ट करके समझाना होगा। जी एनी अदर मैसेज? जी यस सुरेश। मैम मेरी तरह लाखों लोगों के लिए आप एक रोल मॉडल हैं, और काफी लोग हैं जो कि आपके एनजीओ से जुड़ना चाहते हैं टू प्रोवाइड सोशल सर्विसेज और मे बी टू गेट एसोसिएटेड फॉर द फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन. Since I am associated with the commercial and corporate world, I get a lot of inquiries about this. So how do I tell them that they can get associated with these NGOs and do a real social service? Suresh, there's a contact page. I think Shantanu has created a contact page. You can immediately contact us. And I think there's a column saying in what way would you like to contribute. You want to contribute in time, in kind, or fundraising, whatever. So you can then, am I right, Shantanu? Shantanu, can you explain, Shantanu? Absolutely, ma'am. Absolutely. We have a section called Connect with Us. So this section provides us with a couple of options. If somebody wants to help the cause by donating to the cause, they can do so. They can join us as an intern or as a volunteer. Or if they want to get along with us on demonstrative learning journey as a faculty or an expertise and provide us with their time, they can do so. All they have to do is just go to that section, click on that section, fill the details, and we will get in touch with you. Suresh, you got the answer? अब आपसे कोई पूछे तो इसीलिए अब एक डेस्टिनेशन बनी है, और I think it's got all the FCRA benefits, it's got the ATG benefits, so it's got all the tax incentives as well. That is why हम ये ना होता, thanks to Government of India, हम बड़े fully audited हैं, एक पैसा अकाउंटेड फॉर है। ये आप ही तो मेन ऑडिटर्स हैं, आप अपनी बात बता ही सकते हैं। सो क्रेडिबल भी, और ISO सर्टिफाइड भी है। इसको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में भी, गिव इंडिया में भी ये हाईएस्ट रैंकिंग में क्रेडिबल है, ड्यू डिलिजेंस हुई है। सो यू इफ यू सपोर्ट दिस ऑर्गेनाइजेशन, योर कंट्रीब्यूशन इज सेफ and you can strengthen this. As I said, it's in kind or it's otherwise. So go to the column, as Shantanu Chaudhary has explained. You can tick mark in a kind. Deepak Chandwani sitting here. ये सबसे बड़ा डोनर है। हमने कोई पैसा थोड़ी खर्चा किया डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग का, ये दीपक चंदवानी ने हमें डोनेट किया टेक्नोलॉजी। और दीपक चंदवानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बोल रहे, रात को होगी, वहां मिडनाइट होगी। ये दीपक ने दिया है। दीपक ने आपने क्यों दिया? आज 20 साल से हमको 30 साल से दे रहा है, क्यों दे रहा है? टेक्नोलॉजी He's giving us as technology support, ऐसे हमको सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी सपोर्ट। सो जब आपको ये फॉर्म मिले तो आप कह सकते हैं we will create a bank of support, and need based we will start linking you, need based, so उसके accordingly चलेंगे। So Suresh, I do hope that you have the answer, where if anybody asks you, tell them to contact the go to contact page. और नवज्योति और इंडिया विजन की वेबसाइट्स भी लिंक्ड हैं विद डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग, सो ऑल द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल देयर। आप फोन करिए, ईमेल करिए एंड जुड़िए, आइए एक साथ चलेंगे आगे। मामी, देयर इज अ ब्लेस्ड क्वेश्चन हियर जो कहते हैं, मैम गांव की बहनों को सपोर्ट के लिए, उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जरूरी कदम क्या हो सकते हैं? ये सूर्य दुबे जी ने पूछा है। बेटा, इस वक्त रूरल इंडिया इज आवर रियल होप। आपको पता है कोविड मिनिमम रूरल एरियाज में गया है, क्योंकि वहां अभी भी भीड़ नहीं है। मेरा ख्याल है एक टाइम आएगा जो अर्बन इंडिया विल गो बैक टू रूरल इंडिया। देयर विल बी ग्रेट मोर रूरल टूरिज्म। लोग चाहेंगे खुली हवा में रहना। अब हर चप्पे ऑफ जमीन रूरल की और भी कीमती हो गई। एक तो फूड बास्केट है, रूरल इज अ फूड बास्केट। और देखो कोविड के टाइम पर एक ही चीज खुली थी, वो है फूड ग्रेन्स की मूवमेंट। पहले सबसे पहले खाना रोको, खाना मिलेगा, रोज आप तंदुरुस्त हैं तो आप काम कर सकेंगे। सो देयरफॉर रूरल इंडिया में अगर हम पंचायती राज में आधी महिलाएं हैं, 33% महिलाएं हैं, अगर हमारी 33% इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पंचायत women know their responsibility and their legal rights,
You can imagine what a revolution it would be. वह और आज इतनी ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से रूरल इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, एसएचजी वुमेन को इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, हनी बी कीपिंग के लिए मिल रहे हैं, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स मिल रहे हैं, सीड मनी मिल रही है, एग्रीकल्चर को इतने ज्यादा सब्सिडीज मिल रही हैं। अगर ये इंफॉर्मेशन हम प्रॉपरली पंचायतों को दें और आगे पंचायत की हर मेंबर जाने और फिर हर रूरल का पर्सन जाने, वो रूरल कोई शहर में जाना चाहेगा, रूरल कोई व्यक्ति गरीब नहीं होगा, हर रूरल आदमी आज अर्बन से ज्यादा हेल्दी और अमीर होगा अगर वो अपनी कीमत ऑफ द रूरल, हमें अब रूरल डेवलपमेंट के लिए इंफॉर्मेशन देनी है, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करनी है, जो कि नहीं है। Information we need to spread. What is the, and government of India at the moment is giving first priority to rural development, agriculture development, SAG women, skills training, and food chains and cold storage. आपने देखा है गांव में अब आप अपना अनाज खुली मंडी में बेच सकते हैं, ऑनलाइन बेच सकते हैं। सो ये कौन सिखाएगा? इसलिए डिजिटल करना गांव को कहना शहर में आने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग कर लो, आज ऑनलाइन सीख लो, को शहर में इतनी दूर बस में जाओ 2 घंटे आने 2 घंटे वहां एडमिशन, आज ऑनलाइन ट्रेनिंग मिल रही है, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले लीजिए। इसलिए ऑनलाइन के लिए कंफर्ट लेवल होना भी जरूरी। इसलिए मेरा समझ कि हर एनजीओ को अपना एक कोई ना कोई और हर कॉर्पोरेट को एक गांव एडॉप्ट कर लेना चाहिए और उसमें रूरल स्ट्रेंथ बताएं। अब स्मार्ट सिटी नहीं, अब स्मार्ट विलेज के लिए तरफ जाना हमको। स्मार्ट विलेज मीन्स वहां पढ़ाई भी है, हेल्थ भी है, डेमोक्रेसी भी है, रिप्रेजेंटेशन भी है, और पानी भी है, सफाई भी है, कानून व्यवस्था भी है, सब बच्चे भी अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, तो और एनजीओ सपोर्ट भी है। अगर हम ये सब कुछ करें तो मैं समझती हूँ वो स्लम हो या रूरल हो, ये रूरल के खास कर एग्रीकल्चर के लिए अब हमको नहीं आना है, हमको स्लम नहीं बनाने हैं, हमको शहरों में स्लम्स में नहीं रहना है, हमको सोशल डिस्टेंसिंग हवा में रहना है ताकि हम लोग एक दूसरे को इन्फेक्शंस ना दे। इसीलिए वजह तो ये मॉनिक आ रहा है क्योंकि हम लोग इतने भीड़ में रह रहे हैं कि मेरी हवा आपको ना मिले, आपको मेरी ना मिले, ताकि मैं बची रहूं। ये शहर का हाल है, ये गांव का नहीं है, अभी भी गांव का नहीं है। और फिर मनरेगा भी है, तो अगर कोई स्किल्ड हैंड्स स्किल्ड है तो आप मनरेगा में जाओ, आप कमा सकते हो इतना ज्यादा। 100 से ज्यादा डेज में गवर्नमेंट आपको इतना पैसा देती है कि आपको अगर कायदे से सबमिट करें तो आपकी पेंशन बनती है। सो आज फैसिलिटीज में कोई कमी नहीं है, पॉलिसीज में कोई कमी नहीं है, समझने की कमी है, इग्नोरेंस दूर करने की कमी है, और कोई समझाने वाला भी चाहिए। तो पंचायत का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे पता है चांदनी हमारी नवज्योति इंडिया फाउंडेशन से जो गांव में, सोना के गांव में काम करती है, इसने बहुत काम पंचायतों में किया है। मैं चांदनी को रिक्वेस्ट करूंगी ये करते जाना और मॉडल विलेजेस बनाना, स्मार्ट विलेजेस बनाना। आई थिंक चांदनी ये है तुम्हारी डेस्टिनी। Beta Ujala wants to ask a question. Did you see her? Yeah, good afternoon, ma'am. Yes. Ma'am, we have a question from a well-wisher from UAE, Mr. Kamal Puri. He's asking from you, education should be academic and experience. Academic can be provided through technology and experience through practical aspect. What are your views on this? Absolutely right. Kamal is right. आपको दोनों चाहिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो थ्योरी भी मिलेगी आपको ऑनलाइन, प्रैक्टिकल भी मिलेगा, दोनों मिल सकता है। और ये थोड़ी है जरूरी प्रैक्टिकल भी हमेशा ऑनलाइन। आपके पास अब कॉमन लेबोरेटरीज बन सकती है, कॉमन लाइब्रेरीज बन सकती है। जरूरी नहीं हर एक स्कूल में एक लाइब्रेरी हो। दे कैन बी कॉमन कम्युनिटी लाइब्रेरीज, दे कैन बी कॉमन कम्युनिटी लेबोरेटरी, जहां स्टूडेंट्स कॉमन रिसर्च कर सके, कॉमन अपनी पढ़ाई कर सके। और ऑनलाइन भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आजकल बहुत मिली। स्किल इंडिया के में जाओ तो स्किल इंडिया में, नेशनल ओपन स्कूल, ये सारे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रही है। हमको पता होना चाहिए कि हमको जाना कहाँ है। और कमल मुझे पता है दुबई में है, कमल और डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग में 100% कोलैबोरेशन शुरू हो सकती है। मेरी रिक्वेस्ट है कमल को, ही कुड बिकम अ फर्स्ट ओवरसीज पार्टनर in practical, in technology and this kind of training. I would invite him to become our first partner
on our demonstrative learning, जिसमें बच्चे आपसे theory भी सीख सके और practical भी सके. And I know Kamal has a very large heart. He's wanting to serve India. So Ujala, connect with him, and he could be probably one of our first pioneer partners. Sure, ma'am. जी जी. A lot of more blessings pouring in. आदित्य राव कहते हैं हैप्पी बर्थडे मैम, यू आर एन इंस्पिरेशन. ईरा शाह कहती हैं अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू मैम, वी आर प्राउड ऑफ यू. अक्षय कहते हैं हैप्पी बर्थडे मैम. मनी कहते हैं यू द आयरन वुमन ऑफ इंडिया, थैंक यू. माधव चौधरी कहते हैं दे आर विशिंग यू हैप्पी बर्थडे मैम. नरेश थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू मैम. राजेंद्र गुप्ता कहते हैं ओशन ऑफ नॉलेज मैडम, थैंक यू. यस यस मम्मी इज, वो 24 घंटे पढ़ती हैं, लिखती हैं. शी इज, थैंक यू. मम्मी बीच में एक मैसेज आया था, वो स्क्रॉल हो गया ऊपर. एनी मैसेज टू फाइट कोरोना? बेटा इस वक्त अपना बचाओ ही दूसरे का बचाओ है. अपना बचाओ, क्योंकि हम इन्फेक्शन पास ऑन करेंगे. और दूसरा है, सो कैसे पास ऑन करेंगे? जब हम पब्लिक में मास्क नहीं लगाएंगे. पब्लिक में मास्क पहनना बहुत जरूरी है. क्यों? क्योंकि ये जो मैं बोल रही हूं, अगर मैं कभी खांसती हूं और मेरी स्नीज आती है या मेरे मुंह से थूक निकलती है, और अगर वो थूक मेरा पास अगर इन्फेक्शन है और दूसरे को वो बड़ा नजदीक है, उसको मिल गई तो इन्फेक्शन मुझे भी तो है, तो तुम्हें भी है. अगर दूसरे को मेरा मास्क है तो मेरे से रह जाएगा और मैं अपना इलाज करा सकती हूँ. सो मास्किंग मीन्स सेल्फ प्रोटेक्शन एंड अदर्स प्रोटेक्शन. उसकी बाद है डिस्टेंस, जैसे 2 गज की दूरी. प्रधानमंत्री जी ने बोला 2 गज की दूरी. 2 गज की दूरी काम करो, 2 गज की दूरी से बात करो. जैसे आप देख रहे हो कैबिनेट की मीटिंग में 2 गज की दूरी पे हर कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हुए. मंदिर जाना है, प्रार्थना में जाना है, शॉपिंग में जाना है, कहीं भी जाना है भीड़ में, तो आप अपना डिस्टेंस रखो, मास्क पहनो. जब तक ये कोविड का प्रॉपर प्रिवेंशन वैक्सीन नहीं आता है, हमें ये प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी. एक ये, और तीसरा हाथों को 100% साफ करना है, क्योंकि हाथों से आंखों पे भी बात है, तो आंखों को भी कवर रखो. अगर गॉगल्स हैं तो गॉगल्स पहनो, नहीं तो प्लेन ग्लासेस पहनो, ताकि आपको आंख में भी ना आ जाए. क्योंकि अगर मैं छींटी और मेरी आंखें ऐसे हैं तो छींट मेरी आंखों में भी पड़ सकती है. तो आई हैव टू प्रोटेक्ट माय आईज आल्सो. So, and I must not keep touching all the time. I'm touching. Try, but touching मेरी आदत है या मेरी जरूरत है. I must keep washing my hands properly washing my hands with soap and water, so that I don't disturb my eyes, I don't enter this, I don't infect the other, and I maintain my social distance. इस वक्त कोविड में अगर कभी गलती से कुछ हो गई बात, तुरंत जाओ मेडिकल के लिए, ताकि अर्ली डिटेक्शन इज बेटर. और सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने आप को इम्यूनिटाइज रखो. दैट मीन्स ठीक खाओ, ठीक टाइम पे पियो, ठीक गलत चीज मत खाओ. टेक ऑल काइंड्स ऑफ राइट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स. गलत खाना मत खाओ, फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स लो, दाल लो, और अच्छी इम्यूनिटी वाली. आप सब जानते हैं हमारी आयुर्वेद कितना अच्छा है. तो आयुष्मान भारत में हमारे आयुर्वेद की इतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटीज हैं, हमको अपनाना चाहिए हमको. और योगा करो, योगा करेंगे तो मानसिक इम्यूनिटी बहुत बढ़ेगी. सो योगा करें, न्यूट्रिशन ठीक से लें, सही सोच लें, सही वातावरण रखें, सफाई रखें, अपना ध्यान रखें, क्योंकि मेरे दूसरे का ध्यान मेरे लिए बहुत जरूरी है. और अगर कोई एज हायर वीक है और हायर एज है, उसको इस वक्त अननेसेसरी फालतू में मार्केट में जाने को अवॉइड करना चाहिए. और सिमिलरली अभी अपने छोटे बच्चों, इसीलिए स्कूल की छुट्टी एक्सटेंडेड है. सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर सीनियर्स एंड एल्डर्स, बिकॉज देयर इज लिटिल फ्रेजिलिटी, क्योंकि उस एज में इम्यूनिटी अगर गिरती है. सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर एल्डर्स, जो हमारी रियासत है, हमारी विजडम है. हम अपने बुजुर्गों का भी ध्यान रखें, हमारे अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें. अच्छा म्यूजिक सुने, भक्ति सुने. टेलीविजन दूरदर्शन में इतने अच्छे प्रोग्राम्स आजकल पुराने वापस आ गए हैं, तो आप उनको भी देखें. सो अपने खुराक
खुराक 5 सेंसेस से होती है। आई से खुराक, नोज से खुराक, मुंह से खुराक, कानों से खुराक और जुबान से। If your 5 senses taken the best out of the world and the environment and reject the worst, you are giving everything to yourself. These are the 5 doorways that भगवान कृष्ण ने भी कहा था। ये आपकी 5 इंद्रियां हैं। अगर आपने 5 इंद्रियों से सब कुछ ठीक करके अपने अंदर डाला है, तो ये जो बॉडी है, ये एक मंदिर का काम करती है। लेकिन अगर आपने इस 5 इंद्रियों से गंदी चीजें दी, तो आपका ये बॉडी रिजेक्ट करेगी, बीमार होगी, आपको इलाज चाहिए होगा। लेकिन ये 5 इंद्रियां अगर आप ठीक करेंगे, तो आप फाइट बैक करेंगे, आप इन्फेक्शन को फाइट बैक करेंगे अगर आपको इन्फेक्शन लग भी गया। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो दिस व्हाट आई थिंक इन कोविड, इन सम प्लेस प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यस, यहाँ पे क्वेश्चन भी ये था, इट्स कॉट अ क्रिएटिव थिंकिंग स्टार्टेड। इस दौरान बहुत लोगों की क्रिएटिव थिंकिंग भी शुरू हुई है। You've covered that, you've taken that, मम्मी। मम्मी, रूबी यादव पूछते हैं, हाउ डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग कैन हेल्प फॉर स्कूल स्टूडेंट्स? मैम, हाउ डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग कैन हेल्प स्कूल स्टूडेंट्स? Oh, there is story. You are reading a story. You are every day reading a story. बच्चों को इंस्पिरेशनल स्टोरी मिलेगी तुमसे, तुम्हारी आवाज से, और सुबह इंस्पिरेशनल मैसेज मिलेगा, बुक्स भी मिलेंगी, तो पढ़ो, बुक्स को पढ़ो, स्टोरी सुनो। माँ बाप की ये स्टोरी वो सुना रहे हैं जो हमारी नानी नाना ने बताया था, या पेरेंट्स ने सुनाई थी। तो वी आर जस्ट ब्रिंगिंग बैक द स्टोरी। सो एक हाइव में शांतनु, विल यू लाइक टू टेल देम अबाउट द स्टोरी सेक्शन प्लीज? शांतनु? Sure. Sana, we have a section called Hive, जिसमें ऑडियो और वीडियो सेक्शन है। So audio sections में we have book being read, stories being narrated by Dr. Bedi and you. There are video sections also, which will have animated stories. Again, should be narrated by you and Dr. Bedi. So that is how we are reinventing, or we are bringing back the art of storytelling, the art of book reading, which was always there with our grandparents. It seems to have got lost during this time. So we are bringing it back. So as Dr. Bedi rightly said, school children can also extract maximum from this art of storytelling and book reading. और आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। वी वेलकम कंट्रीब्यूशन। आप स्टोरी सुनाना चाहते हैं, साइना विल रीड योर स्टोरी। आप कोई स्टोरी आपने लिखी अच्छी, आप भेजो, साइना विल रीड इट फॉर यू। ऑथरशिप विल रिमेन विद यू, बट साइना विल रीड योर स्टोरी, साइना विल रीड योर कोट। तो आप भेजो, वी विल लव टू रीड। सो प्लीज, you can become the storyteller on demonstrative learning through the voice of Saina. ये प्लेटफॉर्म हमारे बच्चों के लिए भी खुला है। इंडिया विजन और नवज्योति के सारे बच्चे, जितने भी हमारे टीम लीडर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनके बच्चे, they can all express their creativity on this platform. So it's open for all. Any other question from our founding members? Any other question? Otherwise, Yes, ma'am, a very happy birthday from all the children. They've made beautiful cards, greetings. They've written poems for you for your birthday. So मेरा जो सवाल है, आज मैं उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हमारे जितने भी बच्चे रेमेडियल में पढ़ते हैं और स्किल प्रोग्राम सीखते हैं, सो मैम वो जानना चाहते हैं कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति इस चैलेंजिंग टाइम में वो क्या तैयारी करे कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। बेटे, पहले अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो। ये मत सोचो पहले था, हाय ये क्या हो गया, हाय क्या हो गया, नहीं है, ये है, अब ये है, ये मेरा स्कूल है, अब घर मेरा स्कूल भी है, और ये मेरा टेलीविजन इंटरनेट अब मेरा लिए वर्चुअल क्लासरूम है, और मैं इधर से इसी से अब मेरे पास, मैंने रोज जाना नहीं इस वक्त, जब मेरा तब तक स्कूल नहीं खुलेगा तब तक मैं वो करूं जो मेरा स्कूल सिखाता था। स्कूल प्रार्थना कराता था, प्रार्थना करो। स्कूल योगा कराता था, करो। घर में पीटी कर सकते हो, एक ही जगह में खड़े, एक ही जगह खड़े पीटी कर सकते हो। आप अपनी बुक्स को रिवाइज कर सकते हो,
आप अपनी बुक्स को रिवाइज कर सकते हो, एडवांस रीडिंग भी कर सकते हो। पहले कहते थे टाइम नहीं मिल रहा मैडम, एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम नहीं है। अब कहते हैं ये टाइम खत्म कब होगा? अरे जो नहीं है वो आप चाहते हो, और जो है उसको नहीं समझ रहे। सो इस वक्त वैल्यू करो, ये समय भी वापस नहीं आना है। ये हर टाइम थोड़ी ये कोविड रहते हैं, ये तूफान आते हैं, इस समुद्र के समय के तूफान में ये आते हैं और जाते हैं। किश्ती वही कामयाब होती है जो कि सही तरीके से किश्ती संभालती है और चलाती है, जानते हुए कि ये तूफान चला जाएगा एक दिन। सो इसलिए पढ़ो, एडवांस रीडिंग करो, जनरल नॉलेज पढ़ो, धार्मिक पुस्तकें पढ़ो, स्टोरी बुक्स पढ़ो, योगा करो, अच्छा म्यूजिक सुनो, अच्छे टेलीविजन के प्रोग्राम सुनो, गूगल से नॉलेज सीखो, लैंग्वेज सीखो, म्यूजिक सीखो, आर्ट सीखो। ये समय इतना कैसे आएगा कभी? एडवांस रीडिंग करो। एक बात मैं बता दूं, सिर्फ इम्तिहान के लिए तैयारी नहीं होती है, नॉलेज के लिए, ज्ञान के लिए, समझ के लिए शिक्षा करो। शिक्षा सिर्फ इम्तिहान अभी मैं पास हो जाऊं नहीं, पास तो जिंदगी में होना है। ज्ञान तो जिंदगी के लिए है। क्लास में तो पास हो जाओगे, क्लास में पास कर देती टीचर, लेकिन सवाल उठता है मैंने उससे, हर किताब से, चैप्टर से नॉलेज क्या सीखा, समझ क्या ली, एक्सपीरियंस क्या लिया, ये मेरा कैसा बन गया, ये ज्ञान मैं कैसे बन गई, जिसमें मैं, मेरे एटीट्यूड में चेंज आई। सो अच्छी अच्छी शिक्षा ग्रहण करने, और शिक्षा का मतलब सिर्फ किताब नहीं होता है, शिक्षा का मतलब समझ को बढ़ाओ, माँ बाप की सेवा करो, एल्डर्स की इज्जत करो, मूल्य सीखो, अच्छी हैबिट सीखो, टाइम वेस्ट मत करो। यहीं पर कमलेश पूछ रहे हैं कि मेंटल स्ट्रेस को कैसे अवॉइड किया जाए ड्यूरिंग कोविड। पहले स्ट्रेस क्रिएट क्यों करते हो अवॉइड करने से? ना, स्ट्रेस को करते क्यों हो? अगर अवॉइड करना है पहले क्रिएट क्यों करते हो? क्रिएट क्यों करते हो? और ये जानना चाहिए कि स्ट्रेस क्यों आ रहा है, उसको समझो कि मुझे स्ट्रेस किस बात का आ रहा है। ओ मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए, तो पढ़ लो। और मैंने गलत बात बोला तो मत करो। पहले जान, जी, we are losing connection. तो स्ट्रेस का जड़, गो टू द रूट कॉज को ट्रीट करने लग जाओगे। आपने देखा ना, पेड़ को जब स्योंग लगने लगती है तो स्योंग दो तरीके से हम खत्म करते हैं, ऊपर से भी स्योंग की वो डालते हैं और जड़ को भी क्रिएट करते हैं, जड़ को भी ट्रीट करते हैं, ऊपर से भी। ऐसे ही स्ट्रेस को पहले उसकी जड़ का पड़ताओ और ऊपर से बाकी हैबिट्स को अपनाओ तो स्ट्रेस आएगा ही नहीं। अवॉइड करने से कोई चीज वापस आती है, अवॉइड नहीं करने ही ना दो। गो टू द बिगिनिंग ऑफ योर थॉट, जब आपकी चिंता शुरू होने लगती है इसीलिए मेडिटेशन, भक्ति, मंत्र जाप, प्रार्थना, ये सब हेल्प करती है। योगा, okay, good. We can interact with the audience. Can we, Guchu? Can we, Saina? We've been taking questions from the audience. Okay. I've been following them. I think कोई young student है जो पूछ रहे हैं, he or she feels कि उनका ये साल खराब हो जाएगा. He feels this year is going to get deleted from. On the contrary, ये साल ज्यादा पढ़ने का क्यों नहीं हुआ, ज्यादा रीडिंग का क्यों नहीं हुआ, ज्यादा योगा और आर्ट एंड कल्चर का क्यों नहीं हुआ, एक नई सीखने का क्यों नहीं हुआ, घर में काम आने का क्यों नहीं हुआ, डिजिटल IT लर्निंग का क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? इसको ऐसे क्यों नहीं सोचते कि ये साल तो मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि मेरा स्कूल में आने जाने का समय बच गया। और कईयों में तो ऑनलाइन लर्निंग हो रही है, जहां ऑनलाइन लर्निंग का एक्सेस नहीं है वो अपने घर में करके अपना बैग। आपको एक बात बताऊं,
जब मैं छोटी थी, मेरी मदर मेरी नेक्स्ट क्लास की किताबें ले देती थी। मान लो मैं 4th स्टैंडर्ड में, मेरी 5th स्टैंडर्ड की बुक्स मुझे पहले दे देते थे। मैं अपनी स्कूल की छुट्टियों में 5th स्टैंडर्ड की बुक्स 4th स्टैंडर्ड की जब क्लास हो गई तो मैं पढ़ रही थी। तो जब मैं क्लास में जाती थी तो 5th स्टैंडर्ड की बुक्स मैंने पढ़ी हुई थी, मेरी वो रिवीजन थी, क्लास में रिवीजन थी। Why can't you do this? Go to your go to the next class, start reading it. So it's a way you look at it. उसको वेस्ट क्यों समझते हो? बल्कि वो तो बोनस है आपके पास। जी जी, रश्मि पूछ रहे हैं, what is your message for today's woman in India and abroad? मुझे ये बताओ कि वोमन और मैन में एक ही अंतर है मेरी नजर में, क्योंकि वोमन एक मदर बन सकती है। मीन्स मदर का मतलब वो ही बच्चा प्रोड्यूस करता है, वो ही बच्चे को पैदा कर सकता है फिजिकली, क्योंकि बच्चा उसके पेट में उसमें ग्रो करता है। मैन और वोमन में मेरे लिए एक सबसे बड़ा अंतर एक ही है कि बच्ची औरत मां बनती है और बच्चे को पैदा करती है। उसके बाद वो पढ़ती कैसे है, लायक कैसे बनती है, काम कैसे करती है, अपने घर को कैसे चलाती है, अपनी समझ कैसे बढ़ाती है, अपना समाज में योगदान कैसे देती है, उसकी जरूरत, उसकी काबिलियत बराबर है। उसके ऊपर डिपेंड करता है वो अपनी बराबरी कैसे करे, अपनी समझ कैसे बढ़ाए। लेकिन उसको भगवान ने एक एक्स्ट्रा गिफ्ट दिए कि वो एक बच्चा पैदा कर सकती है, बच्चे का पालन पोषण करती है, बच्चे की मां बनती है। फादर भी फादर बनता है। फादर फिजिकली प्रोड्यूस नहीं कर सकता, फादर कंट्रीब्यूट करता है। फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट टुगेदर टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड। मगर बच्चा ग्रो मां की औरत की जिम्मेदारी। सो औरत को ही भगवान ने ये देन दिए, दूसरे को नहीं दिए। लेकिन उसके बाद वो पढ़ती कैसे, लायक कैसे बनती, समय का सदुपयोग कैसे करती, पैसे का धन कैसे इस्तेमाल करती, आगे वो उसकी समझ है। वो ना किसी से कम है और ना किसी से ज्यादा है, लेकिन एक चीज में ज्यादा है, क्योंकि वह बच्चे को जन्म देती है, वो जन्म देती है, वो ह्यूमैनिटी की जन्मदाता है। ये कुदरत ने उसको गिफ्ट दी है। लाख जोर लगा लिया, ये चेंज नहीं हो सका अभी तक। नहीं तो अगर ये चेंज होता तो many men would have liked to become a mother. They would have had the ovary, etc. It has not happened. It's not been allowed. It's against nature. So क्योंकि माँ, औरत, बच्चा, और हाँ एक चीज और, जो औरत है उस क्योंकि वो माँ बनती है, उसको प्यूबरिटी आती है, उसको पीरियड्स आते हैं। पीरियड्स उसके लिए कोई लिमिटेशन थोड़ी है, पीरियड्स उसकी हेल्थ है, पीरियड्स उसके लिए, उसके मेंसेस उसके लिए हेल्थ है, उसकी प्रेपरेशन फॉर अ ह्यूमन बॉडी है। तो उसको कैसे पीरियड्स को डील कैसे करना है, ये उसकी समझ बननी है। उसको कोई समझाए, टीचर समझाए, उसके माँ समझाए, उसकी बड़े समझाए that she needs to read how does she deal with her periods. मैं अपने पीरियड्स में मैचेस खेलती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपनी लाइफ की ग्रोथ को कैसे डील करना है। लेकिन मैं ये थोड़ी समझती मैं तो कम हो गई, अब मैं गई, मैं मैचेस खेली, मैचेस जीती विद ड्यूरिंग पीरियड्स। सो तंदुरुस्त अपने आप को रखना। सो मैन और वुमन, आप सिर्फ मुझे वुमन पूछ रहे हो, मैं कहूंगी एज अ पर्सन, दोनों लाइव्स है। औरत भी एक लाइफ है, पुरुष भी एक लाइफ है। वी मस्ट लुक एट आवरसेल्व्स एज a life which has a look of a woman, which has the body of a woman, and a woman who can produce a child and is gifted, and then that choice is mine. ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हर औरत को समझना चाहिए, बच्चा पैदा करना है कि नहीं करना इज हर चॉइस। व्हाई? बिकॉज उसने उसको जन्म देना है, और एक बारी माँ बच्चे को जब जन्म देती है, वो ऐसा रिश्ता है जो कभी भी नहीं टूटता। ये अटूट नॉन नेगोशिएबल रिश्ता है, वो हमेशा के लिए रहता है। मैंने देखा है फादर्स को अपने पुत्रों को फारकती देना, मैंने माँ को कभी नहीं देखा अपनी बेटी को फारकती देना या बेटे को, नहीं कभी नहीं देखा। मस्ट बी 0.1%। तो ये है ह्यूमन नेचर। जी, ब्लेस्ड मम्मी, ब्लेस्ड। मीनल पूछ रहे हैं, हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस एंड ब्रेवरी लाइक यू, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन? मेडिटेशन? क्या मेडिटेशन?
पहले ब्रेवरी और कॉन्फिडेंस, आप इतने ब्रेव कैसे हो, इतने कॉन्फिडेंट हो? हाँ बेटा, ये लिखा है, हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस ब्रेवरी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ विपश्यना मेडिटेशन। बेटे विपश्यना मेडिटेशन ये भगवान बुद्ध की देन है। भगवान बुद्ध ने ये कहा, समझाया कि विपश्यना का मतलब है अपने आप को विशेष तरीके से देखना। विपश्यना का ये नहीं मतलब है कुछ और। विपश्यना इज अ पाली वर्ड। पाली वर्ड मीन्स विशेष तरीके से क्षण, विपश्यना। विप मीन्स विशेष, क्षणा मीन्स देखना। अपने आप को विशेष तरीके से देखना। क्या देखना? अपने आप को देखना। मेरे पास क्या हो रहा है? मुझे स्ट्रेस आ रहा है, मेरे पास गुस्सा आ रहा है, मेरे पास रिवेंज की भावना आ रही है, मेरे साथ गाली निकालने की भावना आ रही है, मेरी प्यार की भावना आ रही है। लेकिन ये समझाते हैं कि ये कोई भी भावना स्थिर नहीं है, आती है और जाती है। इसलिए बुद्धा इज नोन दैट एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। कोई चीज परमानेंट नहीं है। आज कोविड आया है, कोविड चला जाएगा। सुनामी आई थी, सुनामी चली गई। भुज का तूफान आया था, अर्थक्वेक आया था, चला गया। सब बीमारी आएगी, चली जाएगी, लेकिन हमने उसको समझदारी से संभालना है। दैट मीन्स हमको अपना रिएक्शन को समझना है कि मेरा रिएक्शन क्या है, मेरी तैयारी क्या है, मैं इसको रो पीट रहा हूं या मैं समझदारी से मास्क लगा रहा हूं। अपना ध्यान रख। विशेष कोई चीज परमानेंट नहीं है, ऐसी कोई भावना भी परमानेंट नहीं है। आज आप बड़ा खुश हो रहे हो, कल फिर आपकी भावना बदलनी है और आप फिर से वो मांगोगे। मतलब आप खुश में खुश रहो, पागल मत हो जाओ। दुख में दुख हो, पागल मत हो जाओ। पागलपन से विपश्यना आपको बचाती, विच मीन्स अपने आप को देखो, अपने आप से क्या हो रहा है। और हर इमोशन का भगवान बुद्ध ने कहा था कि जब भी ऐसा इमोशन आता है, भावना आती है, वो आपकी बॉडी पर खुश हो रही, मेरे अंदर से बड़ी खुशी। भूख एक भावना है। आपको भूख लगती है, सो दैट मीन्स आपका अंदर से भावना आती है, आप उसको खाना खिलाते हो। इट इज एन इमोशन, सो डील विद इट। दैट मीन्स अगर आप अपने आप को देखने लग जाएंगे तो आपके पास ना राग आएगा ना द्वेष आएगा, आपके पास समता भाव आएगा। ये है दिस वर्ड, ना राग ना द्वेष, एक समता भाव। मीन्स आप बैलेंस रहेंगे, समता भाव में रहेंगे, ना बहुत परेशान होंगे ना बहुत एक्सटेटिक हो जाएंगे, समता भाव में रहेंगे। जैसे मैं दीपक को आजकल देख रही हूँ, दीपक चंदानी को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, लेकिन दीपक में बहुत परिवर्तन आके मैंने देखा है। दीपक बिल्कुल समानता में बैठा है। पूछो इससे कैसे? इसने कुछ ना कुछ सीखा है, विपश्यना सीखी, कुछ ना कुछ सीखा है। ही इज ऑलवेज द वे ही इज। दैट मीन्स लाइफ टीचेस यू बैलेंस ऑफ लाइफ। इट्स लुकिंग एट योरसेल्फ इन एन वे, knowing yourself। मैं इसको एक शब्द इस्तेमाल करती हूँ, सेल्फ पुलिसिंग। स्टार्ट डूइंग सेल्फ पुलिसिंग। अपने आप को सुनो, अपने आप को देखो, अपने आप को सुनो। जब बोल रहे हो सुनो, मैं झूठ तो नहीं बोल रही, सुनो। मैं झूठ बोला, अंदर की भावना बोली अरे तू झूठ बोला। अपने आप को देखा, ये मैं नहीं हूं, ये जो मैं देख रही हूँ है नहीं मैं। तो द क्वेश्चन इज सेल्फ पुलिसिंग, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ हियरिंग, सेल्फ वॉचिंग, इट्स सेल्फ लिसनिंग। सो दैट इज वाई एक शब्द जैसे कहते हैं ना, एक एरो जैसा है, शब्द निकला तो वो एरो वापस नहीं आ सकती। तीर कमान निकला, वो वापस भी नहीं जा सकता, वो गया। सो बुद्धा टीचेस यू दैट लाइफ, that is why we all have a temporary life. Somebody lives 60, 70, 80, 90, 20, God knows. Life is temporary, it's not in your hands. You have only to live it well under self-observation, but live in a balanced way. आप अपनी नीड्स को मीट करो, ग्रीड पे नहीं जाओ, नीड पे रहो। सो दिस बुद्धा इज टीचिंग यू। सो बुद्धा इज टीचिंग यू सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ कंट्रोल, पार्टिंग द एटफोल्ड पाथ ऑफ ट्रुथ। और वो सारा हमेशा कहता है कि आप ऐसा करो जो कि आपको वो उसके बाद, और अगर दुख ना दे तो फिर एक उन्होंने मुझे बताया, श्री गोयंका जी मेरे टीचर हैं, एस.एन. गोयंका जी मेरे टीचर थे, जिन्होंने मुझे ये पाठ सिखाया। मैंने कोर्स भी किए विपश्यना का। विपश्यना के कोर्सेज इगतपुरी में और दुनिया भर में होते हैं। एक फिल्म है डूइंग टाइम डूइंग विपश्यना, अगर आप सुनने वाले सुन सकते हैं तो इसमें यूट्यूब पे है, डूइंग टाइम डूइंग विपश्यना।
इसको देखिए और विपश्यना के ऊपर रिसर्च करिए, ये बहुत बढ़िया। इसके बाद वो अच्छा इंसान बनाती। इन द एंड जो इंसान विपश्यना करता है वो अच्छा इंसान बनाता है, ना दुखी होता है, ना दूसरे को दुख करता है। इसका मतलब जो वो काम करता है वो समानता भावना से करता है, अटैचमेंट से नहीं करता, क्योंकि उसको पता है ये मेरा नहीं है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये परमानेंट नहीं, मैं जो करूंगा चला जाएगा, इसलिए मैं अच्छा क्यों नहीं करूं, मैं कर्तव्य अच्छी तरीके से क्यों ना करूं। सो व्हाटएवर आई डू, आई मे डू विद द सेंस ऑफ डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी। भगवान कृष्ण ने यही कहा था, कि वो कहा था ना, करो वही जो आपका कर्म ठीक कहता है, रिजल्ट मेरे पे छोड़ दो। दैट इज वेयर यू हैव नो कंट्रोल ओवर, हैंग ऑन के अब ये परमानेंट रहे, भाई ये चला ना जाए। बच्चे ने बड़ा होना है, बड़े होकर चले जाना है, माँ बाप छोटे हैं, उन्होंने भी चले जाना है। We all have to live our life. We only can live well. वेल आप हमेशा सेल्फ ऑडिट के बारे में भी बहुत बात करते हैं। सेल्फ ऑडिट, उसको एक्सप्लेन करिए। सेल्फ ऑडिट मम्मी। बेटा ये वही है, विपश्यना सेल्फ ऑडिट ही है। जब आप ऊपर से नीचे तक ध्यान लगा के अपने आप को ध्यान लगाते हैं, तब आपके राग द्वेष वापस आते हैं और फिर आप क्षमा भी मांग सकते हैं। और विपश्यना के कोर्स में एंड में आप क्षमा याचना करते हैं और आप मांगते हैं कि अगर मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ तिहाड़ जेल का। जब मैं आईजी प्रिजन थी तो हम लोग सारे जने शाम को प्रार्थना में बैठते थे। तो हमने एक ध्यान इनको सारे प्रिजनर्स को एक मैसेज दिया कि सब जने आंखें बंद करो और मुझे मत बताओ कि आपने गलती क्या की, ना दूसरे को बताओ, अपने आप से पूछो आपने गलती कहाँ की थी। आपने कहीं क्राइम किया था, किसी का दुख दुखाया था, किसी की चोरी की थी, छल कपट किया था, तो अपने आप से पूछो। और अगर पूछो है तो अगर आपका मन बोलता है कि हाँ की थी, तो उससे क्षमा मांगो, बिना बोले, बिना लिखे, अंदर की आत्मा से जाओ क्षमा मांगो, जाओ। इसको कहते हैं इंग्लिश में, हमने उसको सब्जेक्ट दिया था एथिकल थेरेपी। एथिकल थेरेपी आपको हैरान होगी सुन के कि बहुत सारे प्रिजनर्स ने इस एथिकल थेरेपी का कैसे उपयोग किया। वो कई लोग कचहरी में चले गए और कहा मैं तो सर ये मेरी कचहरी का केस क्या करे सर, मैं तो इससे क्षमा मांग चुका हूं। अरे क्षमा कब मांगी? मैं अपने मन से आत्मा से तो मैं क्षमा मांग चुका हूं सर, मैं तो अपनी इस क्राइम से मुक्त हो चुका हूं, मैं तो मुक्त हो चुका हूं सर, मैं क्षमा मांग चुकी। आप सर आपके हाथ में, आपने जो मुझे सजा देनी दे दो, मैं तो मुक्त हो चुका हूं। आपको पता है, आपको पता है कि कईयों की जेल कट गई, कईयों की जेल कम हो गई, सजा कम हो गई, कईयों को वाकई में मैजिस्ट्रेट ने उसको पैरोल पे या बेल पे छोड़ दिया क्षमा याचना की वजह से। आपको याद है एक फिल्म आई थी, धर्मेंद्र थे, एक रोड एक्सीडेंट हुआ था, ट्रक से एक आदमी व्यक्ति मर गया था, उनके ट्रक से फेटल एक्सीडेंट हुआ था। डू यू नो दैट फिल्म इज ऑल अबाउट दैट? ही वेंट बैक and worked with the family and healed the family and somehow or the other he evolved as another। अच्छा बहुत पुरानी पिक्चर है, लेकिन एथिकल थेरेपी ऐसी है जो कम से कम अपने आप को तो फ्री करो। गिल्ट में क्यों रह रहे हो आप? अंदर से जमा, मैं मुझे बहन बहन को मत बताओ कि वर्ब, क्योंकि वो ब्लैकमेल करेगा, मुझे पता है तुमने क्या किया था। नहीं, you just go internally. That means you connect with each other to say I admit I made a mistake, I'm sorry। that means आप दोबारा नहीं करोगे। सो क्या हुआ, इन प्रिजनर्स का वो दोबारा वापस नहीं आए तिहाड़ में, क्योंकि वो क्षमा मांग चुके थे और उन्होंने एक रियलाइजेशन आ चुकी थी कि मुझे ये भुगतना पड़ेगा एक दिन, एक दिन मुझे भुगतना पड़ेगा जो मैंने गलत कर्म किया है। सो इट इज कॉल्ड ऑडिट, it is internal audit, you can call it internal audit and you can call it ethical therapy। therapy therapeutic by personal ethics। तो अगर हम रोज का ऑडिट करें, एक ऑडिट बना ले रोज का ऑडिट करना कि आज मैंने समय सदुपयोग किया, आज मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया, आज मैंने समय का सदुपयोग किया, आज मैंने वो सब, और यहाँ ये मेरा ऑडिट है, आज कल मैं ये और इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। इसका मतलब हर व्यक्ति रोज बेटर एंड बेटर काम भी बेटर कर सकता है, सोच भी बेटर कर सकता है, अपना कर्म भी बेटर कर सकता है। One more। We can take one more। Yes, beta, it's Ruby Yadav। Haven't I read this? No, I haven't। Huh? Okay, it says one more question, ma'am। बेटा गुच्चू साइना, मैं पढ़ सकती हूँ? जी जी पढ़िए मम्मी, पढ़िए।
वन मोर क्वेश्चन मैम, जिन बच्चों की सोच पेरेंट्स से मैच नहीं हो या पेरेंट्स की सोच बच्चों से मैच नहीं करती, ऐसी सिचुएशन में बच्चे क्या करें? बच्चे वो जो कॉलेज गोइंग हैं, बच्चे जो कॉलेज गोइंग है, वो करियर हो या मैरिज हो या फॉरेन स्टडी हो, प्लीज टेक दिस क्वेश्चन टू मैक्सिमाइजिंग गर्ल्स नीड, मैक्सिमम गर्ल्स। सो आप देखो, हाँ हो सकता है कि माँ बाप कहें हम बुजुर्ग हो रहे हैं, जल्दी शादी करो। हो सकता है कहें हम बुजुर्ग हो रहे हैं, हम अपने सामने अपने देखना चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए, और पोता भी जानना चाहते हैं, हम पोता भी देखना चाहते हैं, और तुम नहीं चाहते। तुम चाहते हो मैं पढ़ूं और मैं अपने पाँव पे खड़े हूँ, और अगर शादी करूं तो फिर मैं बात से समझदारी से करूं, नहीं करूं। इस सोच में अंतर है। या तो आप सरेंडर करेंगे जिसकी वजह से सारी उम्र दुखी रहेंगे, क्योंकि आप जबरदस्ती एक ऐसे रिलेशनशिप में चले जाएंगे, हो सकता है कामयाब हो या ना हो, मुझे नहीं मालूम, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और दूसरा ये, आपको अपने माँ बाप को समझाना पड़ेगा, इज्जत से प्यार से समझाना पड़ेगा, और नहीं मानते तो जो रिश्ता लेकर आएंगे ना, उसको बोल देना कि देख मैंने तो पढ़ना है, हाँ मैं तू मेरे लिए वेट करने को तैयार है तो वेट कर ले, हम एंगेजमेंट ले लेते, लेकिन मैं भी पढ़ूं तू भी पढ़, फिर फैसला करेंगे। सो इट्स अ मिडल पाथ। सपोजिंग मम्मीज फाउंड, पेरेंट्स हैव फाउंड अ वेरी गुड पार्टनर फॉर यू, और वो पार्टनर कहता है नहीं तुम पढ़ते रहना, काम भी करते रहना, नो इतनी जल्दी नहीं, मैंने पढ़ाई की, पहले मुझे पढ़ाई करी, एंगेजमेंट भी कर, उसमें आप टेस्ट भी करो, सो यू कैन फाइंड अ वे आउट, बट डोंट रूइन योर लाइफ, क्योंकि माँ बाप ने चले जाना है, तुमने अपने साथ सारा जीवन रहना है। सो इसलिए माँ बाप को समझाओ, इज्जत से प्यार से, रिश्तेदारों को डाल के, और या तो फिर ढूंढ लिया रिश्ता उन्होंने, तो फिर आप उस आदमी को बोल दो कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ अलग से क्या, देख मैं पढ़ाई में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मैं काम भी करना है, और मुझे बच्चों की कोई जल्दी नहीं है, इसलिए अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो हम लंबी एंगेजमेंट करते हैं, हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये पॉसिबल है, अगर वो कहे नहीं मुझे तो अपने माँ बाप के लिए एक नर्स चाहिए, मुझे तो माँ बाप के लिए हेल्प चाहिए, इसलिए मैं शादी करूं, तो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि आप इसलिए नहीं जा रहे, आप एक जिंदगी का एक रिश्ता बनाने जा रहे, और अगर उसको रिश्ते एक कंपेनियनशिप बना रहे हो जहां एक दूसरे के लिए उसके माँ बाप की सेवा कैसे करनी है, वो पार्ट ऑफ योर कल्चर, बट नॉट बिकॉज यू गोइंग देयर फॉर दिस पर्पस, इसलिए नहीं। सो आपके पास, आपको अपने दिमाग से मेडिटेशन करना, आपको सोल्यूशन मिलेगा। मैंने देखा है कि जब आप पूरा क्वाइटली ध्यान लगाते हैं तो आपके अंदर की आत्मा आपको सोल्यूशंस देती है। प्रैक्टिस करके देखो, प्रैक्टिस करो, रोज रोज अपनी इंट्यूशन को जगाओ, आत्मा को बुलवाओ, और आपके साथ पता नहीं कौन बोलेगा, कौन सी आत्मा अंदर से बोलती है, कौन बोलता है। अगर आप, मैंने प्रैक्टिस की है इसलिए मैंने एक्सपीरियंस किया है, अगर आप क्वाइटली ध्यान लगाने का समय निकालोगे, अपने आप को देखोगे, अपने आप आपसे अंदर की आत्मा बात करेगी, देखो, और सोल्यूशन भी देगी। It's all about focusing on the inner voice. 1:30 we have a program outside. Beta, we have a program outside. Beta, we have a program at the Raj Nivas at 1:30. So we conclude. Yes, beta. We conclude. We have a program, we have a part here. All my team, Raj Nivas officers, Asha Gupta, and all my team, जिनको मैं रेनबो बोलती हूँ, मेरी टीम राज निवास ने आज राज निवास में यहाँ पाठ रखा है, और उसका तुमने कहा था ना मामा लंगर करना, तो हमने लंगर कर रहे हैं, और इसलिए बेटा अभी मुझे उसके लिए भी पाठी भी आ गए हैं, तो हमको एक प्रार्थना लंगर करनी है, और वो प्रार्थना जो सारे देश की भक्ति, देश के भले के लिए हो, सारी मानवता के भले के लिए। जी, कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स मम्मी, जिससे पहले हम अपनी प्रार्थना शुरू करें एंड कंक्लूड द लाइव सेशन टुडे? आई थैंक एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार के लिए, मोटिवेशन के लिए, इतने सारे आशीर्वाद के लिए। It keeps us going. Thank you. दिल से thank you.
We will say gratitude. Thank you. You're a part of us. Thank you. Let Mummy, us close. Ji. Can we, beta? Ji. Can I say something, beta? Please, Mummy, please. Ji. Can Ji. we close this amazing birthday recognition and the respect and love and gratitude you've given to Almighty Gratitude, and we can sing and close with a prayer which I sang for 2 years every day with all my prisoners in Tihar jail. ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले, बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम. Would you like to sing, all of you? Yes, And all, yes. I would like to request all those who joined us in the Facebook, Twitter, YouTube, all our social media. And I want to, before I say the prayer, I want to thank Ujala, I want to thank Chandni, I want to thank Shantanu, I want to thank Neetu, I want to thank Suresh Vyas, I want to thank Deepak Chandwani, Neetu, Suresh, Deepak, Saina, Monica. I want to thank you all. इतनी थोड़े दिनों में आपने इतना चमत्कार कर दिया, ये तो कमाल कर दिया. आपका बहुत धन्यवाद. अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं और सारे विश्व के भले के लिए प्रार्थना करते हैं, सबके लिए, ताकि उसमें सबका भला हो. I want to thank him the most, who took on the maximum. Shantanu, thank you, Shantanu. Shantanu, thank you the most. Thank you for giving me the opportunity. Thank you, Shantanu. Thank you. God bless My you all. pleasure. It was my May we pleasure. Thank you continue very to much. serve humanity through demonstrative learning. It's our version 1. Okay, Shantanu, let's keep taking it forward. Proud of you. Thank you. Thank you. So grateful to you as a team. Thank you. God bless you. Bless you. Thank all those who joined us through all forms of media. I wish we could take more answers, but now we have the next chapter to go to in Rajnivas, Puducherry.
Thank you. So lots of love from Puducherry to all of you. Keep safe, and remain healthy.